Good morning to all of you. Class 8, Subject Social Science, Chapter 6, Weavers, Iron Smelters, and Factory Owners. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 77 निकालेंगे। आज वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। The year was 1904. In the hot month of April, Charles Weld, an American geologist, and Dorabji Tata, the eldest son of Jamsetji Tata, were traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposits. तो साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडार की खोजबीन करते घूम रहे थे। They had spent many months on a costly venture looking for sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India. Jamsetji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India. But this could not be done without identifying the source of fine quality iron ore. वे भारत में एक आधुनिक लौह इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त ये थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों को पता लगा लिया जाए। One day, after traveling for many hours in the forest, Weld and Dorabji came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। These people were the Agaris. When asked where they had found the iron ore, the Agaris pointed to a hill in the distance. ये अग्रिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। Weld and Dorabji reached the hill after an exhausting trek through dense forest. On exploring the hill, the geologists declared that they had at least found what they had been looking for. Rajhara Hills had one of the finest ores in the world. तो वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रज़ारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। द रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री वॉज नॉट टू बी फाउंड नियर बाय। The Tatals had to continue their search for a more suitable place
to set up their factory. However, the Agaris helped in the discovery of a source of iron ore that would later supply the Bilai steel plant. लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। ये सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अग्रिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। A few years later, a large area of forest was cleared on the banks of the river Subarnakha to set up the factory and an industrial townships Jamshedpur. Here there was water near iron ore deposits. The Tata Iron and Steel Company that came up began producing steel in 1912. कुछ साल बाद सुब्रनरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था, जहां टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टिस्को की स्थापना हुई, जिससे 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को was set up at an opportune time. Although late 19th century, India was importing steel that was manufactured in Britain. Expansion of the railways in India has proved a huge market for rails that Britain produced. For a long while, British experts in the Indian railways were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. तो टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आम तौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। डियर स्टूडेंट्स, अब ब्लैक बोर्ड पर मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो आपने कॉपी पे उतारना है और याद करना है। तो आपका होमवर्क है, When was the first world war broke out? तो इसका आंसर है in 1914 the first world war was broke out. Thank you and have a nice day.